Wonderful morning, my dear students. So, we are going through the lesson forms and frames from HTML. Okay, so we have started this lesson, and I think you need a short recapitulation. So, let me share my screen with you so that you can see and you can remember the points. Okay, and those who are having books, they must sit with the book. Okay, because along with watching you must be watchful to your book. Okay, so this is it. The screen is shared and I hope all of you are able to see it. Okay, so this is lesson 5, forms and frames. Okay, so form is not any complicated word for you. You know that what is form. Okay, and what we ask with form, with the help of form, we ask data, we ask information from the users. So that is called form. Nothing very difficult. And nowadays we are much aware of online form rather than offline forms. ठीक है, जब स्कूल में एडमिशन हुआ था आप लोगों ने ऑफलाइन फॉर्म भरे होंगे, but now the time has come totally online forms. ठीक है, so these are the important things you need to know, the different parts of a form. You can see there is a sample form where you need to enter name, father's name, email ID. You have to choose the mode of study. Okay. So these are the components of form. Yes, Darshan, it is uploaded. Again, I will upload it. No problem if it is not visible over there. Okay. So text box, text box is used to get the information related to characters. ठीक है, see when you are writing name, of course you will use character. ठीक है, but यहाँ और एक जो मैं सोचा था ऐड करने के लिए, date of birth, DOB. So when we are talking about date of birth, at that time the text box will not be considered. There will be date type data will be considered. We will come to know how we can apply date input box. ठीक है, अच्छा, one more thing, ये text box, then you can see check box, you can see radio button, all these things are considered as input. ठीक है, these are combinedly would be recognized as input box. ठीक है, तो input is very important tag of HTML. ये जितने भी आपको बॉक्सेस दिख रहे हैं, चाहे वो चेक बॉक्स हो, टेक्स्ट बॉक्स हो, या रेडियो बटन हो, या ड्रॉप डाउन एरो हो, ये सब इनपुट का ही कमाल है. ठीक है, ओके, सो इनपुट एक टैग है. इनपुट इज अ टैग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, okay, no problem, Darshan. I will upload it today itself once again. But actually, this PPT is not completed. Okay, don't worry, replace हो जाएगा. फिलहाल तो मैं upload कर दूँगा, कोई बात नहीं. Then you can see that there are 3 different sections of a form: form header, input fields, action buttons. So how to understand this? Just look at the previous slide. Oh, well, so on the top I have written sample form. Then you can see name, father's name, email ID. So this will come under form heading. और ये जो text box है, check box है, these are input fields. And the last, at the bottom, you can see submit button, which is known as command button. So that is called action buttons. ठीक है? Why it is called action button? Because it executes the process. मतलब आपने यहाँ डेटा फिल कर दिया, सब ये जो नेम, फादर्स नेम, ईमेल आईडी, ये सब फिल करने के बाद ये डेटा तब तक सबमिट नहीं होगा जब तक कि ना आप सबमिट बटन पे क्लिक करते हो. तो द एग्जीक्यूशन ऑफ सबमिशन इज डन विद दिस कमांड बटन. दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एक्शन. ठीक है, well, I hope the thing is clear.
Yes, this is the syntax of creating form and very important to keep in your mind. But I would say कि this is not a very tough thing. Only two things here you can see new. I would say body, HTML head, title, body. These are common. Huh. So what is the thing is there new? You have to open form. So form is a tag you can see, and with form we can use attribute also. ठीक है? एट्रीब्यूट अभी शायद किसी को कंफ्यूजन नहीं होगा व्हाट इज एट्रीब्यूट, है ना? किसी को अभी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। उसके बाद फॉर्म एलिमेंट्स है। फॉर्म एलिमेंट्स मतलब वही जो फॉर्म के अंदर आपके कंटेंट होंगे वो फॉर्म एलिमेंट्स है। और बेसिकली फॉर्म में जो सबसे ज्यादा कंटेंट होता है वो किस पे बेस्ड होता है? इनपुट के ऊपर। ठीक है? इनपुट और ऑफ कोर्स कमांड बटन और यू कैन से एक्शन बटन, ये दोनों एलिमेंट्स में आ जाता है। इसका फॉर्म क्लोज्ड, बॉडी क्लोज्ड, एचटीएमएल क्लोज्ड। ठीक है? हाँ, इस स्लाइड में कुछ बहुत इंपॉर्टेंट सा चीज है, वो ये है कि हम लोग फॉर्म में इन सभी का यूज करते हैं। जितना लिस्ट आपको यहाँ दिख रहा है हम इन सब का यूज करेंगे। क्या क्या यूज करेंगे? वी विल यूज टेक्स्ट बॉक्स, वी विल यूज चेक बॉक्स, रेडियो बटन, पासवर्ड बॉक्स, बटन, ड्रॉप डाउन लिस्ट, कॉम्बो बॉक्स, टेक्स्ट एरिया, सब का यूज करेंगे अपने वेब पेज में। लेकिन कैसे, वो तो हम प्रैक्टिकली आपको बताएंगे कैसे। डोंट वरी, वेट एंड वॉच। ठीक है? टेक्स्ट बॉक्स जो है वो नेम वगैरह इनपुट करने के लिए होता है। चेक बॉक्स आपको कोई मल्टीपल ऑप्शन जब सेलेक्ट करना है तब चेक बॉक्स, अगर आपको कोई वन ऑप्शन सेलेक्ट करना है तो रेडियो बटन। पासवर्ड बॉक्स यू नो दैट, यूजर आईडी और पासवर्ड बनाने के लिए। बटन वही है अपना जो सबमिट बटन की बात किए थे, कमांड बटन की बात कर रहे थे, उसे HTML में बटन कहते हैं सिर्फ। ड्रॉप डाउन लिस्ट, ठीक है, ये भी, इससे भी आप बहुत वाकिफ हो, यू आर वेल अबाउट अवेयर ऑफ दिस। ठीक है? ड्रॉप डाउन बॉक्स में क्या होता है? एक एरो होता है, जिस एरो में क्लिक करने से एक लंबा सा लिस्ट ओपन होता है और उस लिस्ट में से हम कुछ चूज कर सकते हैं। ठीक है? अच्छा, इसमें भी मल्टीपल ऑप्शन होता है ड्रॉप डाउन लिस्ट में से। जैसे कि मान लो कि अगर सब्जेक्ट का लिस्ट है, वो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन का, तो मल्टीपल ऑप्शन होगा उसमें, इंग्लिश, हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, कंप्यूटर। ठीक है? लेकिन अगर स्टेट की बात करें तो आप एक ही टाइम में एक ही स्टेट में रह सकते हो, है कि नहीं? आप ऐसा तो नहीं कि भाई एक ही टाइम में कई सारे स्टेट्स में हो। ठीक है ना? तो स्टेट्स में हम लोग जो है छत्तीसगढ़ सिलेक्ट करते हैं। हम लोग क्वांटम फिजिक्स पे नहीं आते, नहीं तो हम लोग हर जगह रहते हैं। नेक्स्ट, कॉम्बो बॉक्स। कॉम्बो बॉक्स ड्रॉप डाउन लिस्ट जैसा ही है, इसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है। कॉम्बो बॉक्स में क्या होता है? ड्रॉप डाउन के साथ साथ कुछ दो चार ऑप्शन भी आपको स्क्रीन में दिखेगा, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कितने दिखाना चाहते हैं। And the last one is text area, that is again a text box. Text area is also a text box, but in text area you can enter multiple lines. ठीक है? Just like address, when we are asking to enter address, at that time we must use text area. ठीक है? एड्रेस के लिए टेक्स्ट बॉक्स काफी नहीं है। ठीक है? चलो, ये तो इंपॉर्टेंट सा चीज हो गया। और हाँ, ये कुछ एट्रीब्यूट्स है जो इनपुट टैग के साथ यूज होता है। और इसमें से ये जो फर्स्ट और सेकंड एट्रीब्यूट है जिसका नाम टाइप और नेम है, ये तो कंपलसरी है। ठीक है? ये दोनों एट्रीब्यूट कंपलसरी है, तो याद रखना। टाइप, जैसे कि मैंने कहा कि फॉर्म में जितने भी आपको कंट्रोल्स दिख रहे थे, कंट्रोल्स इन द सेंस ये ये चेक बॉक्स, रेडियो बटन, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे को हम लोग कंट्रोल्स भी कह सकते हैं, फॉर्म कंट्रोल्स। ठीक है? तो जो फॉर्म कंट्रोल्स है उसमें किस तरह के डेटा इनपुट होगा वो डिसाइड कौन करता है? टाइप। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप लिखे हो एंटर योर नेम और उसके बाद एक टेक्स्ट बॉक्स है, तो ऑफ कोर्स उसका डेटा टाइप तो वो डेट तो नहीं होगा, नंबर भी नहीं होगा। नंबर में कोई नाम लिखता है क्या? पता नहीं, आजकल लिखते होंगे शायद। अच्छा, 007 किसका नंबर है? जेम्स बॉन्ड।
सर मेरा ही है, हाँ, मैं दूसरे मेहुल का कनेक्ट कर 707। रहा हूँ। ओके, तुम्हारा 707 है, जेम्स बॉन्ड का 007 है। ठीक है, तो टॉपिक पे आ जाते हैं। टाइप में हम इसमें से कुछ भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हाँ वो डिपेंड करता है कि आपको किस तरह के डेटा इनपुट कराना है। नेक्स्ट, नेम। नेम बहुत जरूरी है, क्योंकि नेम अगर आप नहीं दोगे आपके फॉर्म में, तो उस फॉर्म का जब डेटाबेस बनेगा, क्या बनेगा? डेटाबेस। इट इज वेरी हार्ड टू राइट विद माउस। सो उस फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन एंटर हो रहा है ना, उसका एक डेटाबेस क्रिएट होगा। तो उस डेटाबेस का फॉर्मेट जो होता है वो एक्सेल शीट जैसा दिखता है। तो अगर उस डेटाबेस में हेडिंग ना हो, तो हमें समझ नहीं आएगा ना कौन सा डेटा किस काम के लिए है। ठीक है, जैसा आप डेटाबेस तैयार करोगे तो सबसे पहले ऊपर में हेडिंग दोगे ना। जैसे मान लो एक आपका स्कूल का ही डेटाबेस है, तो नेम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये सब हम ऊपर में फील्ड डालते हैं। तो वो तब बनेगा जब आप नेम का यूज करोगे, तो इट इज इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट, वैल्यू। वैल्यू का जो यूज है वो कंपलसरी तो नहीं है, बट नाउ वैल्यू का यूज ज्यादा हो रहा है। और वैल्यू का यूज से एक प्रॉब्लम अपना सॉल्व हो गया। जैसे कि मान लो यहाँ पर आपने लिखा है फुल नेम, उसके बाद ये टेक्स्ट बॉक्स है, इस टेक्स्ट बॉक्स में जॉन लिखा गया है। अगर जॉन को मिटा देंगे तो वहां पर डिस्प्ले होगा फर्स्ट नेम। तो अभी एक मतलब एक हम लोग समझ सकते हैं कि ये पोर्शन अगर नहीं भी होता, सपोज ये जो फुल नेम, कंपनी, ईमेल, ये सब पोर्शन अगर नहीं भी होता, तो सिर्फ हम लोग टेक्स्ट बॉक्स को देख के समझ जाते हैं कि क्या फिल करना है। और आजकल मैक्सिमम ऑनलाइन फॉर्म इसी तरह से आ रहा है, स्पेशली फेसबुक, गूगल, जीमेल का। तो आजकल ये जरूरत नहीं पड़ रहा है, ये जो टैग है या कैप्शन है, इस कैप्शन की जरूरत नहीं पड़ रहा, क्योंकि इनपुट बॉक्स में ऑलरेडी वो शो हो रहा है। तो ये शो कौन करा सकता है? वैल्यू। अगर आप वैल्यू नहीं लिखोगे तो भी आपका वेब पेज बन जाएगा, तो भी आपका काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन आपको अगर वैल्यू डिस्प्ले करना है, इस तरह से कुछ मैसेज पहले से ही शो कराना है टेक्स्ट बॉक्स में, तब काम आएगा वैल्यू। उसके बाद साइज है, जो कि रेयरली यूज होता है। इट स्पेसिफाइज द विड्थ ऑफ इनपुट फील्ड। आपका इनपुट फील्ड का विड्थ कितना होगा, आप साइज से उसको कम ज्यादा कर सकते हैं। मैक्स लेंथ का यूज, इट स्पेसिफाइज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कैरेक्टर्स फॉर द इनपुट फील्ड। वही है, आप जैसे नेम टेक्स्ट बॉक्स के लिए आपने 40 कैरेक्टर्स सेट कर दिए, मैक्स लेंथ इज इक्वल टू 40, तो दैट मीन्स उस टेक्स्ट बॉक्स में 40 कैरेक्टर से ज्यादा इनपुट नहीं होगा। अगर आप चाहो तो लिख सकते हो, 40 से ज्यादा उसमें लिख सकते हो, लेकिन जब आप उसको सबमिट करोगे तो 40 तक का ही कैरेक्टर्स उसमें एंटर हो पाएगा, मतलब सेव होगा, बाकी नहीं होगा। ठीक है, तो अब आ जाते हैं, एक छोटा मोटा फॉर्म आज बनाते हैं, तो ध्यान से देखना फॉर्म कैसे डिजाइन करते हैं हम लोग। ठीक है, ओके, सो मैं अभी यस सर। शेयर कर देता हूँ। स्क्रीन शेयर करने से मुझे फायदा होगा। ओके, सो HTML बनाने के लिए मुझे नोटपैड ओपन करना है। ये हो गया मेरा नोटपैड ऑन, सबको दिख रहा है। आई थिंक फॉन्ट साइज सफिशिएंट है, देख लेते हैं फिर भी एक बार। चलो इसको 28 कर देते हैं। ओके, सो सबसे पहले हमें लिखना है HTML। ये फॉन्ट कुछ सही नहीं लग रहा है, Calibri. You have to mute yourself, everyone. Okay, HTML, then head, inside head there must be title. तो ये हम लोग फॉर्म के ऊपर बना रहे हैं, तो टाइटल में फॉर्म लिख देते हैं। वैसे कुछ भी लिख सकते हैं, there is no restriction. हाँ, टाइटल, उसके बाद हेड क्लोज्ड, फिर शुरू होता है बॉडी। अच्छा, बॉडी के साथ बीजी कलर वगैरह आप यूज कर सकते हो, देयर इज नो हार्म। देन वी स्टार्ट फॉर्म, यहाँ से शुरू हो रहा है हमारा फॉर्म। तो पहले हम लोग शुरू करते हैं बेसिक चीजों से, जैसे
हमें अभी एक काम करते हैं, पहले तो हम ये लिख लेते हैं कि हम अपने फॉर्म में क्या क्या चाहिए। हमको फॉर्म में बच्चों का नाम लेना है, तो एंटर नेम। हमें फॉर्म में बच्चों का जो है पापा का नाम लेना है। अच्छा, पहले मदर्स नेम, ठीक है, सो एंटर मदर्स नेम। ठीक है, उसके बाद हमें फादर्स नेम भी लेना है, तो ये लिख दिया। हम इसको नॉर्मली आप लिख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, देयर इज नो प्रॉब्लम, यू जस्ट राइट नॉर्मली। बट अभी काम अधूरा है, काम पूरा हुआ नहीं है, ठीक है। चलो पहले ये 3 का ही करके देखते हैं। यहाँ पर फॉर्म क्लोज्ड, हालांकि फॉर्म बना नहीं है, मैं बस आपको आगे क्या करना है वो समझाऊंगा, जस्ट मिनट, ठीक है। बॉडी, उसके बाद HTML सी। अब ये जो है, जस्ट टू मेक यू अंडरस्टैंड कि एक फॉर्म में ये सब डिटेल्स हमको चाहिए, तो ये पहले हमने लिख लिया। अब एंटर नेम के बाद आपको टैग ओपन करना है, जिस टैग का नाम है इनपुट। यहां से आप बहुत ध्यान से देखेंगे, क्योंकि इसे एक दिन में याद करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। सो एंटर नेम के आगे आपको क्या है, डालना है इनपुट। जैसे आपने इनपुट लिख दिया, इनपुट लिखने का मतलब कंप्यूटर ये समझ जाता है कि इस एंटर नेम के आगे मुझे इनपुट बॉक्स लगाना है, इनपुट बॉक्स सेट करना है, ठीक है। इनपुट लिख दिया मतलब एक इनपुट बॉक्स आ गया। इनपुट बॉक्स का मतलब क्या है, वेरी सिंपल। जो मैं सैंपल बनाने वाला था ये हम बनाएंगे, बट पहले हम लोग थोड़ा सा सीख जाए कि कैसे फॉर्म डिजाइन करते हैं। तो ये जो कैंडिडेट्स नेम के बाद जो ये टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है, प्रैक्टिकली या टेक्निकली हम उसे टेक्स्ट बॉक्स कहते हैं। तो इनपुट लिखने से क्या हो जाता है, टेक्स्ट बॉक्स बन जाता है। अब आता है टाइप। अब नेम है तो ऑफ कोर्स टाइप क्या होगा, कैरेक्टर। और कैरेक्टर को हम लोग कंप्यूटर के लैंग्वेज में क्या बोलेंगे, टेक्स्ट, ठीक है। सो इनपुट हमारा टैग है, इनपुट के साथ पहला एट्रीब्यूट जो आपको यूज करना है वो क्या है, टाइप। दूसरा एट्रीब्यूट क्या यूज करना है, जो मैंने बताया था बहुत जरूरी है, वो नेम। अच्छा, नेम मतलब क्या कि आपका जब ये फॉर्म का डेटाबेस बनेगा, उस डेटाबेस का हेडिंग क्या होगा, वो होता है नेम, ठीक है। थोड़ा सा और अच्छे से अगर आप समझना चाहते हो तो इसको ऐसे समझ सकते हो, जैसे आप एक्सेल में, ठीक है, सपोज मुझे एक्सेल में कुछ एक तुम लोग का डिटेल्स बनाना है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं पहले सीरियल नंबर लिखता हूँ, उसके बाद नेम, फिर सिटी, फिर फोन नंबर। तो ये जो हेडिंग में लिख रहा हूँ इसे फील्ड कहते हैं, ठीक है। और इसके नीचे जो इंफॉर्मेशन आएंगे वो डेटाबेस कहलाएगा। तो ये फील्ड, ये जो फील्ड हमको दिख रहा है, ये डिसाइड कौन करता है, नेम, ठीक है। The field is decided by name. So it is very important to give a name of this field. तो आप यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिख सकते हैं सी नेम या कैंडिडेट नेम, ठीक है। या फिर आप सिर्फ नेम लिखेंगे तो भी चलेगा, या नेम, सॉरी, नेम ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। तो इससे ये होगा, जब इसका डेटाबेस बनेगा तो आपके हर बच्चे का नहीं, मतलब टेबल के ऊपर में ही एक फील्ड बन जाएगा, नेम ऑफ द स्टूडेंट, और उसके नीचे जितने भी स्टूडेंट इस फॉर्म को फिल करेंगे उन सबका नाम आ जाएगा, सिंपल। अच्छा, अगर आप इसको और छोटा करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं, मुझे लगता है ये काफी बड़ा हो गया, स्टूडेंट्स नेम, तो ये ज्यादा इजी है। तो इनपुट के बाद टाइप हो गया, टेक्स्ट और नेम, ये दोनों चीज बहुत जरूरी है। वैल्यू, वैल्यू को हम लोग थोड़ी देर बाद यूज करेंगे, अभी नहीं करेंगे, ठीक है। अब सेम चीज आपको करना है इसके लिए मदर्स नेम, और क्योंकि मदर्स नेम भी टाइप तो बदलेगा नहीं, मदर्स नेम भी कैरेक्टर से लिखना है, तो भाई उसका क्या होगा, टेक्स्ट होगा। और नेम बस आप चेंज कर दो, नेम आप उसका कर दो मदर्स नेम, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एक बार रिस्पॉन्स दे दो भाई सब। यस सर, आ रहा है। यस Yes, sir. यस सर। इनपुट में अपन टेक्स्ट बॉक्स के लिए है, तो इसलिए अपन टेक्स्ट देंगे टाइप को। ओके, नेक्स्ट इनपुट मैं
थर्ड के लिए मैं टाइप कर देता हूँ, हमेशा कॉपी पेस्ट करना अच्छी बात नहीं है। इनपुट, उसके बाद टाइप, उसके बाद नेम, उसके बाद कोटेशन ओपन करके अब फील्ड का नाम, ठीक है। वैल्यू को हम लोग बाद में यूज करेंगे। तो ये बन गया हमारा एक फॉर्म। अच्छा, इसका हेडिंग अगर आप कुछ देना चाहते हैं तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं फिलहाल लिख देता हूँ सैंपल फॉर्म। अच्छा, एक बात मैं अगर आप पूछूं, मतलब इसका आंसर आप लोग दे पाओगे आई होप। क्या अभी लग रहा है कि ये जो सैंपल फॉर्म, एंटर नेम, एंटर मदर्स नेम, एंटर फादर्स नेम, वो लाइन ब्रेक होके नीचे आ जाएगा? व्हाट डू यू थिंक? या फिर एक ही लाइन में आ जाएगा? फिर शायद तक नहीं आएगा। आ अ, जाना चाहिए सर। लाइन ब्रेक होके आ जाएगा, पक्का? आ जाएगा नहीं तो यस फिर सर। BR लगाना पड़ेगा। आ जाना चाहिए सर, आ जाना चाहिए। आ जाना चाहिए, नहीं आएगा तो BR लगा देंगे। पर आ जाना चाहिए कि फॉर्म है। ठीक है, सर तो मैं इसको सेव करके शो करूं कि BR लिख के फिर शो करूं? क्या बोलते हो? सेव करके। नो बिना सर, उसके लिख सेव के करो। करके शो करो, सेव। सर BR लिख दो। नहीं, सर BR सेव बाद में लिखना। करके। अच्छा, BR सेव बाद कर में लो। लिखना। करके दिखा चलो दो। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले सेव कर ही लेते हैं। तो मैं इसे सेव कर लेता हूँ। मेरे डेस्कटॉप में एक फोल्डर होना चाहिए, हाँ, HTML प्रोजेक्ट है। इसको मैं form.html नाम से सेव कर देता हूँ। ठीक है, ब्रेक नहीं लगाएंगे तो वो एक्चुअली नहीं मतलब एक ही लाइन में आएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं एक बार क्या दिक्कत है। चलो, ये मेरा फाइल ओपन हो रहा है। सर BR लगाना ही है बोला। हाँ बेटा, BR लगाना है, नहीं तो वो एक ही सर लाइन उसमें पे आ लगाना जाएगा। पड़ेगा। ठीक है, देखो, सबको दिख रहा है कि फॉन्ट साइज बड़ा करना है? सर सर नहीं दिख। इसमें हम एंटर भी कर सकते हैं, हाँ बेटा, इसमें नेम डाल सकते हैं अभी। हाँ इसमें डाल सकते हैं, ये देखो मैं डाल दे रहा हूँ। सर यहाँ पे ऐसे तो नहीं आया, स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम। हाँ बेटा, वो एक्चुअली क्या है, उस चीज को शायद अभी भी क्लियर नहीं कर और पाया, सर वो मतलब क्लियर नहीं हो सैंपल पाया। मैं फॉर्म बता एंटर रहा हूँ नेम, आपको, एक मिनट, जस्ट अ मिनट। सैंपल फॉर्म एंटर सी, नेम। ये जो नेम वाला पोर्शन है बेटा, ये फॉर्म में रिफ्लेक्ट नहीं होता है, ठीक है? वेबसाइट में ये रिफ्लेक्ट नहीं होता है। ये जो रिफ्लेक्ट कहाँ बनाया है होगा? उसका। जब इस फॉर्म को सबमिट किया जाएगा और किसी सर्वर में जाके ये स्टोर होगा, ठीक है? जनरली हम लोग फॉर्म क्यों बनाते हैं भाई? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए। तो इंफॉर्मेशन जब कलेक्ट होते जाएगा, उसके ऊपर हेडिंग में आएगा ये फील्ड, ठीक है? सबसे ऊपर वाले रो में ये सब रहेगा, ये नेम वाला पोर्शन फॉर्म में कहीं नहीं दिखेगा। चलो ठीक है, अब हम ब्रेक लगा देते हैं, नहीं तो वो एक ही लाइन में आ रहा था। तो मैं यूज करता हूँ BR टैग। अच्छा, मुझे ये बात बताओ, ये सैंपल फॉर्म को अगर सेंटर में लाना है तो मुझे क्या करना है? सर फिर उसका अलाइन चेंज करना पड़ेगा ना, अलाइन पी उसको अलाइन सर कर पी लेते हैं, अलाइन, पैराग्राफ पी बना। अलाइन सेंटर कर देंगे, अलाइन में पी सेंटर अलाइन लिख देंगे। सेंटर। अलाइन इज इक्वल टू सेंटर। लेकिन सिर्फ अलाइन यूज करना है कि P अलाइन यूज पी करना है? अलाइन, पी अलाइन। हाँ, सर P पी अलाइन। अलाइन, अलाइन करना पी पड़ेगा। अलाइन, करेक्ट पी करेक्ट अलाइन, करेक्ट पी अलाइन। करेक्ट। गुड गुड, करेक्ट। वेरी गुड, क्या बात है, तुम लोग तो सीख गए। वेरी नाइस। हाँ तो सॉरी, ये बाहर हो गया। हाँ, तो P अलाइन करना है, सिर्फ अलाइन लिखने से नहीं होगा। और P को क्लोज भी कर देते हैं, है ना? और उसके बाद जो है ब्रेक हो गया, 2 लाइन ब्रेक हो जाएगा यहाँ, 2 लाइन ब्रेक हो जाएगा यहाँ, फिर यहाँ, यहाँ मैंने कॉपी पेस्ट किया टू सेव द टाइम। अब इसे सेव करते हैं और इसको करते हैं रिफ्रेश। ठीक है, अब लग रहा है फॉर्म टाइप का, क्यों? सैंपल फॉर्म जो है वो एकदम छोटा सा दिख रहा है, इसको फॉन्ट साइज बड़ा करते हैं फिर, है ना? तो यहाँ पर लिख देते हैं फॉन्ट साइज इज इक्वल टू 10, हालांकि वो 10 से ज्यादा ही हो जाता है। यहाँ पर कर देते हैं फॉन्ट को क्लोज, नहीं तो फिर सबका सर साइज। उसमें स्टूडेंट नेम क्यों नहीं आ रहा है? हाँ बेटा, जो फॉर्म है अपना, उसमें स्टूडेंट्स नेम क्यों नहीं आ रहा? ये वाला पोर्शन बोल रहा हूँ ना? हाँ। हाँ देखो बेटा, ये फिर से
थोड़ी देर पहले मैं इसको डिस्कस किया, नेम वाला जो पार्ट है वो फॉर्म में डिस्प्ले नहीं होता है, ठीक है, वो आपके वेब पेज के फॉर्म में डिस्प्ले नहीं होगा, तो ये डिस्प्ले कहाँ होगा फिर? एक्चुअली क्या है, अभी हम लोग ये फॉर्म का एक छोटा सा नमूना है, मतलब आई मीन हम लोग शुरू बस कर रहे हैं। ये फॉर्म जब पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो एंड में एक सबमिट बटन होगा, और उस सबमिट बटन में कुछ कोडिंग हमको लिखना होता है, जिससे ये फॉर्म में जो भी डेटा हम लोग डालेंगे वो जाके सर्वर में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। अब जब वो सर्वर में स्टोर होगा तो एक लिस्ट के फॉर्म में, एक टेबल के फॉर्मेट में वो स्टोर होगा। तो ये जो नेम है, इंटर नेम में जो भी बच्चा अपना नाम डालेगा वो स्टूडेंट्स नेम उसके ऊपर हेडिंग में आ जाएगा और उसके नीचे बच्चों का नाम आएगा। ये यहाँ नहीं शो हो रहा है, वो सर्वर में जब वो डीबीएमएस डेटाबेस बन के जाएगा तब दिखेगा, ठीक है। Yes, sir. हमें फॉर्म में कौन सा पोर्शन दिखेगा? ये जो हमने लिखा है इंटर नेम, इंटर मदर्स नेम। हाँ, यहाँ पर अगर आप जैसे लिख देते हो एंटर स्टूडेंट्स नेम तो वो दिखेगा। सेव कर दो इसको, अब आ जाओ यहाँ, इसको रिफ्रेश करो, दिख रहा है एंटर स्टूडेंट्स नेम, एंटर मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है। अब हम लोग करते हैं चेक बॉक्स। क्या बनाएंगे? चेक बॉक्स। चेक बॉक्स, सर बट उस इनपुट का डेटा अपने को कैसे मिलेगा? हाँ, इसके लिए एक्चुअली हमको दो तरीका है, या तो क्लाउड खरीदना पड़ेगा, क्लाउड स्टोरेज, या फिर आपके पास आपका खुद का सर्वर हो, ठीक है। और ये जो वेब पेज है ये लाइसेंस्ड वाला हो। अभी जो हम लोग वेब पेज बना रहे हैं इसे हम पब्लिश नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास लाइसेंस नहीं है। वो लाइसेंस कौन देता है? जैसे GoDaddy, wix.com, या कोई अगर लोकल वेब पेज डेवलपर है तो वो दे सकता है। लाइसेंस इन द सेंस कुछ नहीं है, एक आईपी एड्रेस इसका खरीदना, ठीक है, पैसा लगता है उसके लिए। हाँ सर, मैं देखा था, अच्छा, वो कुछ डॉलर के लिए मांगता है उससे। हाँ, ठीक है, 10 मिनट बचा है। चेक बॉक्स बता दूं कैसे बनाना है कि Yes, आज sir. आज यही यस रहना? सर। व्हाट डू से? Yes, sir. चलो, बता दो। चेक बॉक्स बता देता हूँ, चेक बॉक्स कैसे बनाना है। अच्छा, उसके पहले दो चार चीज और, जैसे ये हमारा टारगेट है, इसको बनाना है, ठीक है। यस सर। तो अब मुझे एक बात बताओ कि इसका बैकग्राउंड कलर मैं कहाँ से सेट करूं? बैकग्राउंड इसका मरून दिख रहा है, कहाँ लिखना पड़ेगा बैकग्राउंड कलर? सब शायद तक बॉडी के नीचे, बॉडी सर, यस सर, बॉडी के बाद बीजी बॉडी कलर। के बाजू में हाँ, बीजी शायद कलर। तक नहीं, बॉडी में ही लिखना है बेटा। बीजी कलर, इसमें लिख दो डबल कोटेशन में मरून, ठीक है। और जो सैंपल फॉर्म है ये वाला पोर्शन, ये बोल्ड होना चाहिए और अंडरलाइंड होना चाहिए, है ना। मैं इसको थोड़ा सा डिफरेंट डिफरेंट कर देता हूँ क्योंकि एक BU। साथ कोड देखने में दिक्कत हो जाता है। सब यू करना पड़ेगा उसके लिए। हाँ, कहाँ लिखना है? सैंपल फॉर्म के पहले, है ना, बी लिख देते हैं और यू लिख देते हैं। यू। इसे क्लोज भी करना, नहीं तो सबके सब में अप्लाई हो जाएगा। तो क्लोज कहाँ होगा? यहाँ, ठीक। देखते हैं कितना बदलाव हुआ। कंट्रोल S शॉर्टकट और यहाँ के रिफ्रेश, ठीक है, बढ़िया है। और कलर येलो होना चाहिए। अब बताओ कहाँ लिखें कलर? सैंपल मैरून की फॉर्म का, जगह येलो सर या कर दो। फिर केयान कर दो ना कल। हाँ बेटा, केयान कर दो। क्या नहीं भाई, सियान होता है। हाँ श्यान होता है। चलो कोई बात नहीं, अभी तो फिलहाल येलो कर देते हैं। तो सैंपल फॉर्म का कलर बस मुझे येलो करना है, तो मैं कहाँ लिखूं? यही लिखना है, फॉन्ट साइज जहाँ लिखे हैं। अच्छा, बीजी हाँ, कलर कर। फॉन्ट हाँ, कलर। येलो, कंट्रोल S, ठीक है। देखो, फॉन्ट एक टैग है और उसके अंदर ये सब क्या है? एट्रीब्यूट, है ना। साइज, कलर, और कौन सा एट्रीब्यूट यूज कर सकते हैं? फेस। फेस से क्या होता है? टाइप मतलब कोई कॉमिक सैंस MS, इसका नाम सुने हो? कॉमिक सैंस MS। लैंग्वेज मतलब लिखने का, वो क्या बोले,
हाँ उसको फॉन्ट स्टाइल बोलते हैं। राइटिंग, हैंड राइटिंग। हाँ फेस से हम लोग क्या yes, चेंज कर सकते हैं, फॉन्ट का स्टाइल, है ना। तो एक मुझे बड़ा पसंदीदा मेरा फॉन्ट स्टाइल है कॉमिक sans MS, थोड़ा सा बच्चा वाला है, मतलब कॉमिक उसका टाइप का। कार्टून टाइप का। हाँ और एक है जोकर मैन, जोकर मैन तो और बढ़िया है। तब इसको रिफ्रेश किया जाए। ओके तो हमारा काम बन गया, है ना। बट ये एंटर स्टूडेंट्स नेम, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ये सब दिख नहीं रहा है क्योंकि इसका कलर ब्लैक है। बोल्ड कर दो। तो उसको भी हम लोग बोल्ड कर देते हैं, है ना। तो ये बड़ा इजी काम होगा क्योंकि आपको एक साथ करना है, तो आप बोल्ड को यहाँ लिख फॉन्ट दो। को बंद ही मत करो। सिंपली यहाँ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जहां से हम लोग लिखे हैं ना इंटर स्टूडेंट्स नेम, उसके पहले बोल्ड लिख देते हैं और फॉन्ट कलर जो है येलो कर देते जो हैं। तो मैं क्लोज ये किए उसी टैक्स को बंद कर दो ना। हाँ ये भी कर सकते थे, करेक्ट, गुड आइडिया। ये भी कर सकते हैं कि हमने यहाँ तो ऑलरेडी बोल्ड यहाँ पर शुरू कर दिए हैं। कहाँ पर, ये सैंपल फॉर्म के पहले यहाँ बोल्ड शुरू किए हैं और यहाँ पर क्लोज किए। कहाँ क्लोज किए, ये हमारा क्लोजिंग है। तो इस क्लोजिंग को उठा के अगर आप आखिरी में रख देते हो तो होगा यूं, ये पूरा काम बोल्ड हो जाएगा, लेकिन अंडरलाइन नहीं होगा। अंडरलाइन सिर्फ सैंपल फॉर्म तक ही होगा, ठीक है। और कलर, कलर जो है येलो होना चाहिए, लेकिन प्रॉब्लम ये आएगा फॉन्ट को अगर वहाँ, हाँ ठीक है ना, कोई बात नहीं, नहीं फॉन्ट साइज बढ़ जाएगा फिर, ठीक है कोई बात नहीं। यहाँ हम अलग से लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ मतलब जहाँ से स्टूडेंट्स नेम लिखा है उसके ऊपर से हम लोग लिख देते हैं फॉन्ट कलर, साइज को हटा देते हैं, नहीं तो फिर इसका साइज भी लार्ज हो जाएगा। फॉन्ट कलर येलो और आखिरी में जाके यहाँ फॉन्ट क्लोज, ठीक है। फॉन्ट कहाँ क्लोज करना है, ये पहले शुरू हुआ है ना, तो पहले क्लोज कर देते हैं। ठीक है, अब देखते हैं इसका आउटपुट क्या आता है। कंट्रोल एस, आ जाओ क्रोम में, रिफ्रेश, ठीक है। तो अपना काम बन रहा है, लेकिन हमारा टारगेट ये है, ये हम बनाना जरूर सीखेंगे और जरूर सर सीखेंगे। ये मोबाइल नंबर पे +91 कैसे आया? हाँ ये आया वैल्यू से। चलो अच्छी क्वेश्चन है और लगे हाथ इसको समझा ही देता हूँ। अब जैसे देखो यहाँ पर लिखा है एंटर स्टूडेंट्स नेम, ये तो फॉर्म में डिस्प्ले हो रहा है। उसके बाद जो बॉक्स है, टेक्स्ट बॉक्स है, वो एकदम बिल्कुल ब्लैंक है। अगर आप यहाँ चाहते हो कि कुछ डिस्प्ले हो तो उसके लिए यूज होता है वैल्यू। वैल्यू, ठीक है। और उसको यूज किसके साथ करना है, इनपुट के साथ ही करना है। तो इनपुट के साथ आपने यूज किया टाइप नेम। अब आखिरी जो आप एट्रीब्यूट यूज कर सकते हो वो है वैल्यू। वैल्यू लिखने के बाद डबल कोटेशन ओपन कर लो। सो आप क्या लिखना, क्या दिखाना चाहते हो कि मान लो टाइप योर सर नेम है मिलकर सर, मैसेज वो सब। टाइप हाँ ठीक है, ये अच्छी बात है। आप दिखा दो उसमें योर नेम, ठीक है। और पेरेंट्स के लिए यहाँ पर, ठीक है, एंटर, ठीक है, एंटर योर मदर्स नेम, ठीक है। मदर्स नेम, सॉरी ये मदर्स नेम था, चलो ये ध्यान रखना है फादर्स नेम में मदर्स नेम ना हो जाए, फिर वो अजीब दिखेगा। चलो कंट्रोल एस कर देते हैं, ठीक है, सेव हो गया। अब चलते हैं हम क्रोम में, रिफ्रेश, ठीक है। तो यहाँ पर ऑलरेडी आ गया। अब इसको आप मिटा भी सकते हो ना, आप इसमें क्लिक करके आप बैक स्पेस दबाओगे तो वो मिट जाएगा। इसमें दो चार ऐसे भी कोडिंग है कि आप उसमें बस क्लिक करो और वो मिट जाए, वही बताऊंगा कैसे होगा, ठीक है। जनरली वही होता है ऑनलाइन फॉर्म में, आप क्लिक करते साथ ही वो हट जाता है या भी कई बार नहीं हटता है, वो डिपेंड करता है कोडिंग के ऊपर। डन। सर 2.5 मिनट्स बचे हैं। हाँ तो चेक बॉक्स और रेडियो बटन नेक्स्ट पीरियड में ही हो पाएगा, लेकिन वो भी इनपुट ही है, मतलब ये नथिंग न्यू, थोड़ा सा एक झलक देख ही लो, काम आएगा। उसमें आपको ये करना है, उसके लिए कुछ टैग जो है देखो, टैग नहीं सॉरी कैप्शन। एक बात याद रखना, मैं कैप्शन किसको बोलता हूँ, ये जो एंटर स्टूडेंट्स नेम, ये हमारा कैप्शन है।
और उसके आगे जो बॉक्स है वो टेक्स्ट बॉक्स है, ठीक है। अब रेडियो बॉक्स और सॉरी रेडियो बटन और चेक बॉक्स के लिए कैप्शन पहले नहीं लिखते हैं, कैप्शन को बाद में लिखते हैं। पहले हम लोग क्या लिखते हैं, इनपुट, जो कि थोड़ा डिफरेंट है। अभी तक के लिए हम टेक्स्ट बॉक्स के लिए क्या कर रहे थे, पहले कैप्शन लिख रहे थे, उसके बाद इनपुट लिख रहे थे। लेकिन इसमें चेक बॉक्स के लिए आपको पहले इनपुट लिखना है, उसके बाद टाइप लिखना है, टाइप के अंदर आपको लिखना है चेक बॉक्स, ठीक है, हो गया। उसके बाद नेम लिखना भी जरूरी है। तो नेम में फिलहाल मैं, ये ट्रायल है तो मैं चेक बॉक्स 1 C1 लिख दिया, मतलब चेक बॉक्स 1 हो गया मेरा। और उसके बाद वैल्यू, वैल्यू में वही लिखना जो कैप्शन होगा। सपोज कैप्शन मेरा क्लास है तो मैं वैल्यू में क्लास ही लिखूंगा, ठीक है। अब अभी समझ नहीं आ रहा तो एक बार फॉर्म देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब मान लो कि मैं ऐसा करना चाहता हूं कि यहाँ एक मिनट यहाँ लिख देते हैं चूज योर क्लास, ठीक है। अरे बाप रे, 1 मिनट से कम बचा है, चूज योर क्लास। और यहाँ एक ब्रेक लगा देते हैं, लाइन ब्रेक हो गया। अब जैसे मान लो कि यहाँ पर ऑप्शन दिया मैंने क्लास 9, ठीक है, और वैल्यू में भी आप क्लास 9 ही लिखोगे, कंट्रोल S। अब इसे चलते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो ये ब्लैक कलर में आया है, आई थिंक दिख रहा होगा। चूज योर क्लास, यहाँ पर चेक बॉक्स आ गया क्लास 9। अब जैसे क्लिक करोगे उसमें टिक साइन आ जाएगा, ठीक है। तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग अपना ये टारगेट पूरा कर लेंगे, ये वाला बनाएंगे बढ़िया तरीके से, बन जाएगा, बन जाएगा ना, क्या बोलते हो? यस माय डियर स्टूडेंट्स, Yes. Yes, sir. okay then, so